So simply this is the algorithm. We already discussed this algorithm previous class. And how many comparisons, when we create a heap, how many comparisons are required? The total number of comparisons, total number of steps required for inserting n number of element in a heap, that is equal to n of log n. Order of log n comparisons are required for inserting a single element in a heap. Order of log n comparisons are required for inserting a single element in a heap. When we insert all n element, means we form a heap from a list of n elements. This means total number of n log n comparisons are required for inserting n element, because n number of elements are inserted, and at each time when particular element is inserted, log n comparison is required. So this means total number of n element are inserted, and every element needs a log n comparisons. This means total number of comparisons for inserting n element into the heap is order of n log n. Here the algorithm delete the maximum key from max heap, use an algorithm adjust. So here sir, first discuss why, what happens here. Suppose this be from a list of heap from a this list of elements. सर आपने स्क्रीन शेयर की है? स्क्रीन विजुअल नहीं, स्क्रीन शेयर्ड है मेरी। सर ठीक है ये। Suppose here, suppose we form a list like as a 15, 25, 6, 32, 11, 14, 38, 59, 63, 44, 5 and 82. Suppose this is a list of element. तो first we form a heap from, construct a heap from the given list of element. तो simply हम heap start कहाँ से करेंगे? We start from the list of element given in order. तो first element हमारा क्या होगा? 15 होगा. This is a complete binary tree that follow the property of heap, means every element node is greater than every node value is greater than the value of its child. So here 15, then next कहाँ जाएगा? 25. दिस डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी, एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक है, तो पहला एलिमेंट हमने इंसर्ट किया, एक कंपैरिजन रिक्वायर्ड हुआ, फिर दूसरा कंपैरिजन, दूसरा जैसे एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ लॉग एन कंपैरिजंस आर रिक्वायर्ड फॉर एडजस्टिंग दिस. log n comparisons are required for adjusting this, means forming a he proper inserting this node in proper place. तो ये क्या हो जाएगा? 25 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट इज इंसर्टेड 6, प्रॉपर्टी इज नॉट डिस्ट्रॉयड. नेक्स्ट कहाँ होगा? इसके लेफ्ट में जाएगा, तो दैट इज 32, अगेन प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड. तो 32 देखिए 15 से कंपेयर करेंगे, 32 इज ग्रेटर, तो 15 यहाँ आ जाएगा, 32 यहाँ हो जाएगा. फिर इससे कंपेयर करेंगे, दिस इज आल्सो लेस, तो दिस मींस वी एक्सचेंज टू 32. नेक्स्ट स्टेप पे 32 यहाँ हो गया. नेक्स्ट दिस वन इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25, देन ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6. नेक्स्ट एलिमेंट इज इंसर्टेड इज 11, तो 11 आपके यहाँ इंसर्ट होगा, प्रॉपर्टी नॉट डिस्ट्रॉयड. देन 14 अगेन यहाँ पे इंसर्ट होगा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड. तो दिस मीन्स एक्सचेंज दिस एंड दिस. 32 से तो ये लेस है, तो दिस मीन्स दिस इज 32, क्या हो जाएगा? 25, यहाँ 6 की जगह हो जाएगा 14, दिस इज 15, 11, दिस इज यहाँ पे 6 आ जाएगा. नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्टेड इज व्हाट? आफ्टर 14, 38, अगेन प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड. 38 इज कंपेयर्ड फ्रॉम दिस, एक्सचेंज बोथ. ठीक है, 38 पहले क्या करेंगे? 38 इज लेस, तो 38 यहाँ आ जाएगा, मीन्स 38 प्रॉपर प्लस इससे कंपेयर करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे. देन तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 38 इज, तो सिंपली आफ्टर दैट क्या हो जाएगा? 38 यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज 25, और ये क्या हो जाएगा? दिस इज 32, दिस इज 15, 11, ये क्या हो जाएगा? 6, और यहाँ पे आ जाएगा 14. नेक्स्ट
we insert element that is the next element left of this. अब यहाँ पे insert होगा क्या है, that is 59. Again property is destroyed. So this one is what happens here. This is 59 means 59, तो this is ये 15 से कंपेयर होगा, फिर 25 से कंपेयर होगा, तो दिस इज 59 यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, लास्ट में 59 इज फ्रॉम हियर, तो दिस इज 38, इस जगह आ जाएगा 59, ये आ जाएगा यहाँ पे 38, दिस वन इज 32, फिर नेक्स्ट इज इसके लेफ्ट में आ जाएगा 59, 38, दैट इज 38 के बाद क्या आ जाएगा 25, 11, दैट इज 6, 14, और ये क्या हो जाएगा 15. नेक्स्ट एलिमेंट इज इंसर्टेड इज दिस 59 का 63 है, अगेन प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, ये 63 यहाँ फिर से प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो कहाँ पे जाएगा 63 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 63, यहाँ पे डायरेक्ट पहुंचेगा 63. तो दिस इज गुड टू 63 सिंपली 38 की जगह क्या आ जाएगा 59, दिस वन इज 32, फिर यहाँ पे 59, 25, इसका 25 की जगह आएगा 25, 38, दिस इज 15, दिस इज क्या हो जाएगा 63 ऐड किए थे 15, दैट इज 25, नेक्स्ट इज इसका हो जाएगा 11, नेक्स्ट 32, 6 एंड 14. नेक्स्ट एलिमेंट इज व्हाट, नेक्स्ट एलिमेंट इज 44, 44 इसके लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, तो 44 कंपेयर करेंगे इससे, 44 इज ग्रेटर देन, तो दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, फिर ये जो 44 होगा इससे कंपेयर होगा, दिस वन इज लार्जर, तो दिस मीन्स ओनली एक्सचेंज दिस, तो दिस वन इज 63, 59, 32, then 38, 11 की जगह यहाँ आ जाएगा 44, 15, 25, फिर यहाँ आ जाएगा 11 इसके लेफ्ट में, देन नेक्स्ट एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू राइट ऑफ दिस 6, 14, right of 44, next element is inserted is 5, maintain the property of, does not destroy the property of heap. Next element is inserted into the left of 6, so this is 82, the 82 is inserted here, 82 is inserted left of this destroy the property, तो again जो है यहाँ पे 6 आ जाएगा, 82 यहाँ पे जाएगा, फिर ये लास्ट क्या हो जाएगा 82 as the root node of this tree, then 59, ये ट्री में कोई चेंज नहीं होगा, इस लेफ्ट सब ट्री में 38, 44, 15, 25, 11, 5, दिस इज नेक्स्ट, इसका राइट सब ट्री में चलेंगे, तो दिस इज 32, देन 6, 18 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 की जगह क्या आएगा 63, 82 यहाँ आ गया 63, देन 63, 6 की जगह आ जाएगा 32, 14, इसमें कोई चेंज नहीं होगा 14, और ये आ जाएगा यहाँ पे 6. So this tree follow the property of heap, ठीक है, this follow the property of, this is a heap binary tree, means this follow the property of max heap, and after that how we delete a element, means how we delete a element and then readjust. This is the insertion of when any new elements comes, we insert, this requires log of n comparisons. For inserting total number of n element in a list, this requires n log n comparisons in worst case. Here how we delete, first suppose we want to start the list, so first we delete, this is a heap, so first we delete this element,
This is a heap, and this one is put in last of the array. Suppose ये आपका total number of elements are there 4 plus 3 7 plus 4 11 plus 1 12. तो 12 is suppose one location 0 से 11 तक total 12 locations. तो first we delete the root node of the tree and put it in last location of the array. तो ये हम 82 पे रख देंगे, and this last element means nth element of the heap is placed into the first position. तो इसको हम यहां से रिमूव करेंगे और यहाँ पे ले जाएंगे फर्स्ट पोजीशन, मींस दिस वन बिकम्स अ रूट ऑफ द ट्री. अब नेक्स्ट पे क्या होगा, व्हेन वी डिलीट 82, तो अब देखिए यहाँ से हम 6 को रूट पे ले जाएंगे लास्ट एलिमेंट को, और फिर से इसको रीएडजस्ट करेंगे. जैसे इसको ले जाएंगे तो इसके लेफ्ट में क्या बचा, 59 38 44 59 38 54 sorry 44 then 15 25 11 5 this one is 63 32 14 63 32 14 देन अब ये 6 था तो 6 यहाँ से हमने रिमूव कर दिया और इसको हम यहाँ पे ले गए. ठीक है, लास्ट नोड को हम रिमूव करेंगे. फर्स्ट नोड को हम क्या करेंगे, जो हमने एक एम्प्टी एरे लिया है दैट कंसिस्टिंग n नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उसकी लास्ट लोकेशन पे क्या करेंगे, हम रूट एलिमेंट रख दिए. देन जो nth एलिमेंट है इसका ट्री का हीप का, उसको हम फर्स्ट पोजीशन में रूट की जगह पे ले गए, and then call the adjust property. अब adjust property में क्या होगा, b compare this means b compare this from this. अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, जो रूट नोड है जहां पे 6 रखा है, इससे और इससे, दोनों उसके चाइल्ड से कंपेयर करेंगे. जो चाइल्ड मैक्सिमम होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे ले जाएंगे सिंपली. अब देखिए फिर से अगेन कंपैरिजन स्टार्ट करेगा, तो ये हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, विच वन इज मैक्सिमम. देखिए ये 59 63, विच वन इज मैक्सिमम. आइटम में आपका क्या आ गया है, आइटम में आपका 6 आ गया, आइटम इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट जो फर्स्ट एलिमेंट है, या हम कह दें कि ये अब A1 में क्या पड़ा हुआ है, जो एरे है दैट इज कंटेनिंग 6. तो A1 को हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इसके चाइल्ड से. चाइल्ड में क्या है, सपोज दिस इज j इज इक्वल टू 2 ऑफ i. यदि i की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लिया, i इज इक्वल टू 1, और ai में क्या पड़ा हुआ है, ai में 6 पड़ा हुआ है, तो हम एक j इज इक्वल टू 2i ले लेंगे, j इज इक्वल टू 2i, और कंपेयर किससे करेंगे, एंड देखेंगे इफ j इज लेस देन n. ठीक है, इफ j इज लेस देन n, एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, aj इज लेस देन aj प्लस 1. तो सिंपली क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, j इज इक्वल टू j प्लस 1 कर लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, aj बाई 2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे aj बाई 2 मीन्स सिंपली हेयर j बाई 2 क्या हो जाएगा, j की वैल्यू 2i दैट इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पे देखेंगे विच वन इज दिस, मीन्स aj में क्या आ गया, a2 में 59 है, a3 j प्लस 1 63 है. इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यदि j इज लेस देन n, j की वैल्यू 2 है दैट इज लेस देन n, फॉलो aj इज लेस देन aj प्लस 1, ये भी फॉलो हो रही है कंडीशन. तो दिस मीन्स j को हमने 1 बढ़ा लिया, j इज इक्वल टू j प्लस 1 कर लिया, और फिर नेक्स्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपली हियर सी द एल्गोरिथम. फिर चेक करेंगे कि आइटम इज ग्रेटर देन aj. यदि ये जो है, अब j की वैल्यू क्या होगी, देन हम चेक करेंगे कि आइटम इज ग्रेटर देन aj इफ आइटम में क्या है, आइटम इज इक्वल टू ai दैट इज इक्वल टू 6 रखा, आइटम इज ग्रेटर देन aj में क्या पड़ा हुआ है, तो दिस मीन्स आइटम में क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है, 6 इज ग्रेटर देन aj की वैल्यू क्या है, 63 है, कंडीशन इज फास्ट. यदि ये ट्रू हो जाती तो हम यहीं से ब्रेक कर जाते. ठीक है,
यदि ये फॉल्स है तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे सिंपली अभी डिस्कस करना है एल्गोरिथम। एजे बाई 2 इज इक्वल टू एजे कर लेंगे और जे इज इक्वल टू 2जे कर लेंगे। एजे बाई 2 इज इक्वल टू, अब तो देखिए यहाँ पे एजे बाई सिंपली हेयर व्हाट वी हैव टू डू, एजे बाई 2, तो जे की वैल्यू क्या है 7 है, 3 है यहाँ पे, तो एजे बाई 2, जे बाई 2 इज इक्वल टू एजे। ठीक है, एजे बाई 2 इज इक्वल टू, सिंपली यहाँ पे क्या है एजे बाई 2 इज इक्वल टू, एजे बाई 2 इज इक्वल टू जे और जे इज इक्वल टू 2जे। तो यहाँ पे एजे बाई 2, जे एजे बाई 2 क्या हो गया, एजे बाई 2 मीन्स जे की वैल्यू क्या है 3 है, 3 बाई 2 दैट इज इंटीजर वैल्यू हेयर वी कंसीडर। तो a1 में क्या रख लेंगे यहाँ पे, a1 में आ जाएगा आपका एजे मीन्स a3 की वैल्यू क्या है 63 है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टाइम पे क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे j इज इक्वल टू फिर से 2j कर लेंगे, j इज इक्वल टू 2j कर लेंगे। इसके बाद फिर ये लूप रिपीट करेगा अगेन, जब तक ये लूप रिपीट करेगा व्हाइल j इज लेस आर इक्वल टू n, जब तक j की वैल्यू लेस आर इक्वल टू n ना हो जाएगी। तो देखिए अब नेक्स्ट चेक करेंगे j इज इक्वल टू 2j, j की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो j इज इक्वल टू 2j मीन्स यहाँ पे क्या हो गया j की वैल्यू 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं मोर देन 6 है, ठीक है मोर देन 6 है इसमें। अगेन द कंडीशन, दिस कंडीशन व्हाइल j इज लेस देन n लेस आर इक्वल टू n, दिस कंडीशन इज ट्रू। अगेन चेक इफ j इज लेस देन n, कंडीशन इज ट्रू, aj इज लेस देन aj प्लस 1। तो देखिए 6 और 7 को कंपेयर करना है आपको, j की वैल्यू क्या है 6 है, j प्लस 1 7 होगा, तो 6 में क्या है 1 2 3 6 ये है, 34 5 6 7 6 ये है, ठीक है। इसको और इसको कंपेयर करेंगे, यदि क्या है एज इज लेस देन एज प्लस 1 नहीं है तो जे की हम वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे। इफ आइटम इज ग्रेटर देन एज, अब आइटम में क्या पड़ा हुआ है, आइटम क्या है आइटम 6 है, यहाँ पे आइटम इज ग्रेटर देन एज, एज में क्या है 32 है, तो ये नहीं फॉलो हो रहा है, यदि फॉलो हो जाता तो हम यहीं से ब्रेक कर जाते। अदरवाइज क्या होगा यहाँ पे एजे बाई 2, अब एजे बाई 2 मीन्स क्या है जे की वैल्यू 6 है, तो जे एजे बाई 2 मीन्स 3 हो जाएगा, और दिस इज एजे, तो एजे बाई 2 में एजे रख लीजिए। तो यहाँ 3 में क्या रखना है आपको, सिंपली यहाँ पे आपका चला गया था जो है 63, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एजे मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 32, ओके यहाँ पे 32 आ जाएगा। देन क्या करेंगे जे इज इक्वल टू 2j करेंगे, तो आप आफ्टर दैट यहाँ पे हमने रख लिया ए जे बाई 2 इज इक्वल टू ए जे, तो दिस मीन्स हेयर वी राइट a3 j बाई 2, j की वैल्यू क्या है 6 है, तो j बाई 2 दैट इज 3। a3 में हम क्या रखेंगे aj में क्या पड़ा हुआ है, aj मीन्स 6 है, तो 6 में पड़ा था 32, तो यहाँ हमने 32 रख लिया a3 में। नेक्स्ट j इज इक्वल टू 2j करेंगे दैट इज 12। अब देखिए 12 नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही एलिमेंट है टोटल, n की वैल्यू क्या है 11 है। तो दिस मीन्स अब क्या हो जाएगा कंडीशन बिकम फॉल्स, लूप इज टर्मिनेटेड। तो फाइनली क्या कर देंगे, जैसे ही व्हाइल लूप टर्मिनेटेड मींस दिस कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन व्हाइल j इज लेस आर इक्वल टू n। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे देन a सिंपली व्हाट हैपेंस हियर, लास्ट में क्या करते हैं aj बाई 2 इज इक्वल टू आइटम, तो a j बाई 2 इज इक्वल टू क्या रख देंगे ए जे बाई 2 इज इक्वल टू आइटम। तो अब जे की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 12, इससे लूप टर्मिनेट हुआ है, तो अब जे की क्या हो जाएगी a6 में क्या रख देंगे आइटम दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या रख देंगे सिंपली देखिए नेक्स्ट ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ए जे 6 में 6 यही है 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपका आइटम मीन्स 6 रख देंगे। तो अब जो ये ट्री हो जाएगा आफ्टर कॉलिंग एडजस्ट प्रॉपर्टी, देखिए पहले हम डिलीट किए मैक्स एलिमेंट, जो लास्ट एलिमेंट था nth एलिमेंट था उसको हम रूट में ले गए, रूट एलिमेंट हम ऑलरेडी डिलीट करके उसको एक एम्प्टी एरे लिए हैं उसके लास्ट में रख दिए। फिर हम कॉल किए एडजस्ट प्रॉपर्टी, एडजस्ट प्रॉपर्टी में हमें फिर से इसको अगेन हीप के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करना है, बिकॉज दिस डिस्ट्रॉय हीप प्रॉपर्टी, अगेन वी कंस्ट्रक्ट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हीप। तो हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया तो क्या आया यहाँ पे देखिए आ जाएगा सिंपली 63, ओके इधर के रूम में कोई चेंज नहीं होगा, लेफ्ट में 59 38
44, देन 15, 25, इसमें आ जाएगा 11, 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 63 यहाँ पे आया, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ 32, और इसकी जगह 32 की जगह 6 आ गया, और ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो दिस मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट, अभी भी इसमें कितने हैं, 3, 4, 3, 7 प्लस 4, 11 एलिमेंट है। देन अब ये हीप में आपका कंस्ट्रक्ट हो गया, देन अगेन भी डिलीट द रूट एलिमेंट ऑफ दिस हीप। रूट एलिमेंट 63 आ गया, तो हमने इसको डिलीट किया और इसको n-1 प्लेस पे रख दिया 63। ओके, अब आफ्टर 63 जैसे ही डिलीट करें तो इसके जो nth पोजीशन पे है, nth पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 5 है, ये एलिमेंट है। तो 5 को हम इससे 5 को कहाँ पे रखेंगे, रूट पे रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपका यहाँ पे चला जाएगा 5, ओके 5, देन अब इसका लेफ्ट राइट सब ट्री है ऐसे ही रहेगा। तो देखिए अब चेंज कहाँ पे होगा, 59, 30, ओके देन 38, 44, सिंपली हियर 15, 25, 44, 11 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 5 तो हमने इसको डिलीट किया है, तो यहाँ पे यही बस बचेगा, दिस इज 6 और 14। अब देखिए इसके बाद 5 किससे रिप्लेस होगा, इससे रिप्लेस होगा या इससे रिप्लेस होगा। तो आइटम में हम क्या रख दिए, अब फिर से हमने आइटम में ए आई रख दिया, ए आई आई इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, फिर से हमने आई इज इक्वल टू 1 है, तो ए 1 दैट इज इक्वल टू 5। आइटम में क्या हो गया, 5 हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ जे जे इज इक्वल टू 2i रख ले, जे की वैल्यू 2 लिए, इफ जे इज लेस देन n है एंड एजे इज लेस देन एजे प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन एजे इज एजे प्लस 1, कंडीशन लेस देन नहीं है, ये ग्रेटर है, तो हम चेंज नहीं करेंगे जे की वैल्यू। यदि ये लार्ज होता तो जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 सिंपली कर देते, तो हम यहाँ पे चेंज नहीं, जे आपका यही रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा, अब आफ्टर दैट चेक करेंगे कि इफ आइटम इज ग्रेटर देन एजे, नो आइटम इज ग्रेटर देन एजे फॉल्स है, तो ब्रेक नहीं होगा। अभी नेक्स्ट कंटिन्यू चलेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, आप क्या चेक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एजे बाई 2 में क्या रख लेंगे, एजे बाई 2 दैट इज इक्वल टू एजे रख लेंगे। तो एजे बाई 2 क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे देखिए जे इज इक्वल टू 2 होगा, तो एजे बाई 2, एजे बाई 2 मीन्स a1 हो जाएगा, 2 को 1 से 2 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 1। तो यहाँ पे देखिए क्या चला गया, 59 चलेगा। अभी भी आइटम में आपका क्या है, 5 है। देन जे इज इक्वल टू 2j करेंगे, तो जे इज इक्वल टू 2j मीन्स क्या हो गया, 4 हो जाएगा। जे की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो जे इज इक्वल टू 2j दैट इज 4। अब देखिए फोर्थ एलिमेंट ये है, फिर हम क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे कि जे इज लेस देन n है एंड एजे इज लेस देन एजे प्लस 1, यहाँ पे ये कंडीशन भी होल्ड कर रही है, ये एलिमेंट लार्जर है, तो जे की वैल्यू क्या कर लेंगे, जे प्लस 1, तो जे इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चेक करेंगे कि आइटम इज ग्रेटर देन, आइटम ग्रेटर देन नहीं है तो ब्रेक नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, एजे बाई 2, तो 5 बाई 2 क्या हो जाएगा, एजे बाई 2 इज इक्वल टू एजे रख लेंगे, एजे बाई 2 दैट इज इक्वल टू एजे रख लेंगे। तो सिंपली क्या है, जे यहाँ पे क्या था, एजे बाई 2 दैट इज इक्वल टू, तो जे बाई 2 क्या हो जाएगा, 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 आएगा इंटीजर पोर्शन। तो एजे क्या है, एजे में 44 है, तो यहाँ पे आ गया आपका 44 आएगा। नेक्स्ट टाइम पे जाएंगे, जे की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, जे इज इक्वल टू 2j हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो दिस कंसिस्टिंग 10 एलिमेंट, हमको देखना है कि क्या इसमें 10 एलिमेंट है। यस, इसमें 10 एलिमेंट है, 4 + 3 while j is less or equal to n, yes condition is true। सेकेंड कंडीशन कहती है कि j is less, if j is less than n। ठीक है, अब j की वैल्यू क्या हो गई, 10, नंबर ऑफ एलिमेंट n की वैल्यू इसमें क्या है, 10 ही है, j is less than n है नहीं है। ठीक है, कंडीशन बिकम्स false, 10 is less than 10 that becomes false। तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, aj by 2 इज इक्वल टू आइटम हो जाएगा।
तो आइटम कहाँ पे होगा, एजे बाई टू इज इक्वल टू आइटम, तो एजे जे की वैल्यू क्या आई है 5 प्लस 10 आई है, तो 5 में क्या हो जाएगा, 5 कौन सा, यहाँ पे आइटम हो जाएगा, आइटम की वैल्यू क्या है 5। ओके जस्ट वेट अ मिनट, बिकॉज प्रॉपर्टी इसके बाद भी डिस्ट्रॉय हो रही है। दिस इज आइटम इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्या है, व्हाइल जे इज लेस देन n, तो दिस इज इक्वल टू, यस ये भी नहीं होगा, दिस इज आइटम, ये क्या है 11 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे इज लेस देन, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी चलेगी, व्हाइल लूप आपका तब तक चलेगा व्हाइल जे इज लेस आर इक्वल टू n, ये था। दूसरा लूप क्या था, जस्ट सी हियर, इफ j इज लेस आर इक्वल टू n, यहाँ पे भी होगा j इज लेस आर इक्वल टू n है। अब देखिए j इज लेस आर इक्वल टू n है, तो यहाँ पे क्या है 11 है, फिर से वही चेक होगा, j इज लेस आर इक्वल टू 1, तो ये 10 आ गया, j की वैल्यू क्या है, j इज इक्वल टू 10, तो सिंपली क्या होगा, इसका राइट चाइल्ड कोई है नहीं, तो j की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो क्या होगा, j इज इक्वल टू 10 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इफ आइटम की वैल्यू क्या है 5 है, 5 इज ग्रेटर देन एजे, तो नहीं, कंडीशन इज फॉल्स, तो क्या करेंगे, j बाई टू इज इक्वल टू एजे बाई टू इज इक्वल टू, सिंपली क्या कर लेंगे j बाई टू, तो दिस मीन्स यहाँ एजे बाई टू इज इक्वल टू क्या रख लेंगे, एजे रख लेंगे, ठीक है, एजे बाई टू, तो एजे बाई टू 5 आया, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे 11 रखेंगे, और फिर लास्ट में जैसे ही देखिए इसकी j की वैल्यू बढ़ा लेंगे, तो j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, 20 इज लार्जर देन n, तो दिस मीन्स द लूप इज टर्मिनेटेड, एंड फाइनली aj बाई टू, अब aj बाई टू मीन्स a10 में क्या रख लेंगे, दैट इज इक्वल टू आइटम, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो नेक्स्ट आपका जो ट्री बनेगी वो क्या बनेगी, 59 देन 44 देन 30 देन इधर 38, ये आ जाएगा यहाँ पे इसके लेफ्ट में 11 देन 15 25, 11 के लेफ्ट में आया 5 देन 6 14, ओके ये आया। अब देखिए अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हीप, मैक्स हीप, फिर इसको जो लार्जेस्ट मींस रूट इसका डिलीट करेंगे और इसको यहाँ रख लीजिए 59, ठीक है 59 हमने रखा यहाँ पे, नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 59, और 59 को आप इससे डिलीट करेंगे तो यहाँ पे क्या रख देंगे 59 की जगह आपका क्या लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट यहाँ से हटेगा और ये एलिमेंट लास्ट, ये डिलीट हो गया, ये एलिमेंट इसकी जगह पे क्या रख देंगे, इसकी जगह पे क्या है, दिस वन इज 5, दिस वन इज अगेन 5, ठीक है। फिर अगेन चेक द प्रॉपर्टी, जस्ट वेट मिनट 5 फिर चलो, ठीक है, अगेन चेक द प्रॉपर्टी ऑफ हीप। अब देखिए इसको क्या है, सिंपली i की वैल्यू यदि 1 है तो j की वैल्यू इनिशियली 2i हो जाएगी, j प्लस 1 2i प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों से कंपेयर करेंगे, यदि इन दोनों में से जो भी लार्जर होगा उसको हम j की वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। इन दोनों में से जो भी लार्जर, दिस वन इज लार्जर, तो j मींस j इज इक्वल टू 2 रहेगा। देन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आइटम इज ग्रेटर देन नहीं है आइटम, तो क्या करेंगे aj बाई टू इज इक्वल टू aj बाई टू इज इक्वल टू aj रख लेंगे, तो यहाँ 5 की जगह पे क्या चला जाएगा, 5 की जगह पे यहाँ पे 44 होगा, ना कि 11 और ना कि 30 होगा, 5 की जगह पे क्या होगा 44 होगा। देन हम क्या करेंगे, j इज इक्वल टू 2j करेंगे, तो j की वैल्यू क्या है अभी 2 है, अब हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब चलेंगे कि j इज लेस देन n, लेस आर इक्वल टू n है, तो ये 4 मींस ये एलिमेंट होगा और 5 j प्लस 1 ये होगा, तो अब इन दोनों में से जो भी लार्जर होगा उसको हम j की वैल्यू असाइन करेंगे, तो 4 इज लार्जर, तो j इज टेकन एज ए 4। तो सिंपली क्या होगा, फिर चेक करेंगे कि आइटम इज ग्रेटर देन एज, नो, आइटम की वैल्यू 5 है, तो सिंपली ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यू चलेगा, और क्या होगा aj बाई टू, तो aj बाई टू मीन्स a4 बाई टू, दैट इज a2 में क्या रख लेंगे, a2 इज इक्वल टू aj मीन्स a4, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा 38, फिर हम j की वैल्यू बढ़ाएंगे,
j इज इक्वल टू 2j मीन्स j इज इक्वल टू 2j दैट इज इक्वल टू 4 था तो ये 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे j की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब देखेंगे तो j इज लेस देन n, यस कंडीशन सेटिस्फाई। अब इन दोनों में से देखेंगे, अब देखिए j इज इक्वल टू 8 मीन्स कौन सा आया 3 4 5 6 7 8। तो इस इन दोनों में से कंपेयर करेंगे विच वन इज लार्जर दैट इज असाइंड द वैल्यू ऑफ j। तो यहाँ पे ये लार्जर है 9th एलिमेंट, तो j इज इक्वल टू j प्लस 1 कर लेंगे और फाइनली क्या हो जाएगा, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। देन चेक करेंगे आइटम इज ग्रेटर देन एज, नहीं आइटम ग्रेटर देन 25, आइटम में 5 है दैट इज नॉट ग्रेटर देन 25, कंडीशन बिकम फॉल्स। तो क्या करेंगे हम j इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे ए जे बाई टू इज इक्वल टू ए जे रख लीजिए, ए जे बाई टू इज इक्वल टू ए जे। तो जे बाई टू मीन्स जे की वैल्यू क्या है 8 है, तो इसके 4 में क्या रख लेंगे ए 4 इज इक्वल टू ए 8 सॉरी ए 4 नहीं 9 है ना, यहाँ जे की वैल्यू इसको लिए 9 है, तो 9 बाई टू दैट इंटीजर पोर्शन इज 4 और ए जे में क्या आ जाएगा 9 दैट इज 25 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। नेक्स्ट दिस इज 25, लास्ट क्या हो जाएगा फिर j की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, j इज इक्वल टू 2j मीन्स 16 हो जाएगा। 16 इज लार्जर देन n, लूप इज टर्मिनेटेड एंड फाइनली क्या हो जाएगा ए जे बाई टू में ए जे बाई टू इज इक्वल टू आइटम रख लेंगे। तो ए जे बाई टू मीन्स ए जे की वैल्यू क्या है 16 है, 16 बाई टू दैट इज 16 बाई सॉरी एक यहाँ जे की वैल्यू थी 9 तो 9 तो 18 हो जाएगा। तो 18 बाई टू मीन्स ए के 9 पोर्शन में क्या रख लेंगे ए 9 में हम आइटम रख लेंगे, आइटम में क्या है 5 है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या रख लेंगे इसकी जगह पे आ जाएगा 5। ओके, तो आफ्टर मीन्स रीएडजस्टिंग द ट्री बिकम्स लाइक दिस। आफ्टर एडजस्टिंग क्या हो जाएगा 44, फिर देन यहाँ पे आ जाएगा 38, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ 36 14 6 14 देन 30 इसमें क्या आ जाएगा 25, इधर कोई चेंज नहीं है 11, फिर इधर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा 5। अब अगेन देखिए जब हमें डिलीट करना है तो रूट नोड को डिलीट करेंगे इस ट्री के रूट को, तो यहाँ पे ये 44 आ जाएगा नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट 44 आएगा, फिर अगेन रीएडजस्ट करेंगे तो क्या आएगा ट्री बिकम्स लाइक अगेन, फिर यहाँ पे 44 को हटाएंगे और यहाँ पे 5 फिर से आ जाएगा। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे 38 और 30, ठीक है 38 और 30 इसमें से जो लार्जर होगा उसको j की वैल्यू रखेंगे और नेक्स्ट क्या होगा हम j बाई टू में ही रख लेंगे। तो ये 38 कहाँ पे चला जाएगा 5 की जगह क्या हो जाएगा 38 जाएगा। फिर अब देखिए इन दोनों से कंपेयर होगा कौन आइटम को कंपेयर करेंगे इफ, अब देखिए यहाँ पे j बाई टू ये 25 है और ये 11 है, तो जो भी लार्जर होगा उसको j की वैल्यू हम रहने देंगे। तो ये j क्या हो जाएगा यहाँ पे j इज 4 हो जाएगा, 25 वन इज लार्जर। अब यहाँ पे क्या होगा j बाई टू, तो इसमें हम क्या रख लेंगे दैट इज j बाई टू। अब क्या है यहाँ पे सिंपली इसकी जगह 38 की जगह पे j बाई टू मीन्स 25 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए j की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगा j इज इक्वल टू यहाँ पे 4 था तो 8 हो जाएगा एंड दिस कंसिस्टिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 प्लस 4 प्लस 3 7 8 है इसमें एलिमेंट, तो दिस इज अगेन लेस देन कंडीशन इज ट्रू। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे j इज इक्वल टू फोर्स क्या हो जाएगा 8th एलिमेंट पे जाएंगे, तो इस पे जाएंगे 8th एलिमेंट पे। अब इन दोनों में से जो लार्जर होगा वो जो तो ये लार्जर है तो j की वैल्यू 8 रहेगी, तो हम यहाँ पे क्या ले जाएंगे 15 ले जाएंगे और इसको आइटम से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा फाइनली 5। तो आफ्टर दिस स्टेप क्या होगा एडजस्ट, यहाँ आ जाएगा 38, देखिए सबसे लार्जर एलिमेंट यहाँ आ गया, फिर ये 25 देन 30 25 30 then after that 15 11 then यहाँ पे सिंपली क्या आया दिस इज 5 सॉरी 15 है तो 15 की जगह 5 आ जाएगा, ये एलिमेंट है तो दिस इज 25
5 हम यहाँ ले गए जब, तो ये 5 नहीं बचेगा ना, ये एलिमेंट नहीं रहेगा क्योंकि 5 तो ऑलरेडी हम ले जा चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज 5, यहाँ आ जाएगा 5, और ये आपका हो जाएगा 11, देन दिस वन इज 6, 14। ठीक है, अगेन फिर से आप क्या करेंगे, 38 को डिलीट करेंगे, फिर से क्रिएट करेंगे, रिक्रिएट करेंगे हीप बाय यूजिंग अ एडजस्ट प्रोसीजर। इन दिस वे वी डिलीट, एंड लास्ट में क्या होगा, सिंगल एलिमेंट बचेगा, तो दिस वन इज द लास्ट एलिमेंट, हमेशा ये जाएगा हीप में, क्योंकि हमेशा ही दिस वन इज अ लार्जर। तो ये इस तरीके से हम डिलीट करेंगे, तो नेक्स्ट आ जाएगा इसमें 38 डिलीट करेंगे, फिर 30 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर लास्ट में 5। इन दिस वे वी find the sorted list of element. The process is clear. आपको सेम यही करना है, लास्ट एलिमेंट इसको डिलीट करना है, रूट को, जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको रूट में रखेंगे। अगेन कॉल द प्रॉपर्टी ऑफ एडजस्ट। तो दिस वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडजस्ट, देखिए दिस वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडजस्ट। हियर delete the maximum key from max heap, use an algorithm adjust. For deleting a maximum key from max heap, then we use the property of adjust. So here algorithm adjust AIN. A is an array, N is the number of element, and I is a particular element. So this is here the complete binary tree with root with node 2i and 2i plus 1 are combined with node I to form a heap rooted at I. No node has address greater than n or less than 1. Simply here initially j is equal to, हमने देखिए क्या कर लिया, 2i कर लिया, आइटम इज इक्वल टू ai कर लिया, तो जो भी i पोजीशन पड़ा है उसको हमने आइटम पे रख लिया। एक लूप चलाएंगे, while j is less or equal to n, do the following: if j is less than n एंड aj इज लेस देन j प्लस aj प्लस 1, तो हम क्या करेंगे, यही हम देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। सपोज i की वैल्यू ये है, ठीक है, तो हम इसको 38 को डिलीट करेंगे हम, अब यहाँ पे फिर अगेन 5 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या कंपेयर कर रहे हैं, i आइटम में क्या है, आइटम इज इक्वल टू ai मीन्स a1 दैट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चेक कर रहे हैं कि क्या j इनिशियली कर रहे हैं, j इज इक्वल टू 2j, j इज इक्वल टू 2j कर ले रहे हैं। अब चेक कर रहे हैं कि क्या j की वैल्यू लेस देन n है, यस j की वैल्यू लेस देन n है, तो हम क्या कर रहे हैं कि एंड aj इज लेस देन aj प्लस 1, इन दोनों में चेक करेंगे, जो भी मैक्सिमम होगा उसको j की वैल्यू असाइन कर देंगे। तो यहाँ ये मैक्सिमम है, तो j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, j पहले 2 था, अब क्या हो जाएगा, j इज इक्वल टू j प्लस 1, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर कंपेयर क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, if j is less than n and aj is less than aj plus 1, j is equal to j plus 1 कर रहे हैं, compare left and right child and let j be the larger child, जो भी larger होगा उसको j को assign। if item is greater than aj then break। अब यहाँ पे देखिए simply here item क्या है, item is equal to 5 हमने रखा है, 5 is greater than aj 30 से ग्रेटर तो है नहीं, यदि होता तो ये सिंपली ब्रेक हो जाता है, इसे देयर इज नो नीड ऑफ, मींस ऑलरेडी एडजस्टेड हो जाता। इफ अदरवाइज क्या करेंगे, aj बाई 2 इज इक्वल टू aj रख देंगे और j इज इक्वल टू 2j कर लेंगे। ठीक है, j इज इक्वल टू 2j कर लेंगे, और ये प्रोसेस रिपीट करेगा आपका जब तक कि j इज लेस आर इक्वल टू n नहीं हो जाएगा। एंड फाइनली व्हेन दिस पर्टिकुलर लूप इज टर्मिनेटेड वी असाइन aj बाई 2 इज इक्वल टू आइटम कर देंगे, aj बाई 2 is equal to item. So for deleting a single element and readjusting to become to form a heap, total number of comparisons required are log n. Total maximum कितना होगा, that is the label of the tree, maximum number of comparisons that are the number of labels in a tree. तो worst case time complexity is what, order of log n. Best case time complexity क्या होगी, if item is greater than aj, आइटम इज ग्रेटर देन एजे हो गया, तो दिस वन इज द बेस्ट केस, तुरंत ही जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर एडजस्टिंग एलिमेंट इन द हीप, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द हीप, AIN। नेक्स्ट इज डिलीशन फ्रॉम हीप। डिलीशन फ्रॉम हीप सिंपली delete max ANX, delete the maximum from heap A1 to n, means the heap that consisting n number of element, delete the maximum element and store it in an empty array x।
ठीक है, जो भी हम डिलीट कर रहे हैं उसको हम सिंपली एम्प्टी, इट इज स्टोर्ड इन वेरिएबल x। तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्या कर रहे हैं हम कि if n is equal to 0 then write heap is empty. Simply if there is no element in the heap तो simply heap is empty and return a false. अदरवाइज क्या कर ले रहे हैं, x में हम क्या रख रहे हैं, x में a1 क्योंकि ये मैक्स हीप है, यदि मिन होता तो हम क्या करेंगे, तब भी a1 रखेंगे क्योंकि उसमें हम ऐसा ही फॉर्म करेंगे कि मिनिमम एलिमेंट प्रेजेंट इन द रूट ऑफ द ट्री। तो x इज इक्वल टू a1 कर लिए, a1 इज इक्वल टू an कर लेंगे, a1 इज इक्वल टू व्हाट, a1 इज इक्वल टू an हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पहले हमने डिलीट किया और a1 में हमने क्या कर लिया, an nth एलिमेंट है जो है उसको हम a1 पे ले आए और फिर हमने कॉल कर दिया एडजस्ट। आफ्टर डिलीटिंग दिस वी अगेन कॉल द एडजस्ट प्रॉपर्टी बिटवीन a1 एंड n-1। ठीक है, हमेशा ही n रिड्यूस चलता, n रिड्यूस होता जाएगा, a1 n-1, a1 n-2, a1 n-3 एंड सो ऑन। लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट बचेगा, दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड, दिस रिटर्न्स अ ट्रू। तो दिस इज द डिलीट। फॉर डिलीटिंग अ सिंगल एलिमेंट एंड अगेन मींस रीअरेंजिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म अ हीप, what is the time complexity? The time complexity is order of log n. Worst case time complexity that is order of log n. क्योंकि मैक्सिमम आपको रीएडजस्ट करने में मैक्सिमम कितने जो है नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लेवल्स इन अ हीप। तो नंबर ऑफ लेवल्स क्या होंगे, log of n। तो मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ log n। तो the worst case run time of adjust is proportional to height of the tree. Height क्या है इसकी, that is also the number of label height of the any tree that is equal to the number of labels present in the tree. So this means this is equal to log of n. If there are n element in heap, selecting maximum can be done in order of log n. तो चाहे आप ये कहिए या means total formation of heap that is log n, या selecting maximum can be done, मैक्सिमम एलिमेंट को आपको, मैक्स एलिमेंट को आपको किस में लाना है, रूट में लाना है, तो दिस विल आल्सो सेम log of n comparisons required. Then after doing both means deletion algorithm, delete max and adjust algorithm, we find the number of element in sorted order, means we apply heap sort. Since insertion takes order of log n times for inserting a single element in proper position. So when we insert a single element in proper position, how many number of comparisons are required in case of heap? So in case of formation of heap, so that is log of n comparisons, means this is also equal to the number of labels in a tree. Like हमें मान लीजिए सपोज करिए कि हम यहाँ पे कोई एक आइटम है जो कि ये ट्री है आपका, दैट इज मान लीजिए कि दिस इज 30, फिर ये क्या है 30, दैट इज 30, सपोज करिए यही ट्री हम ले रहे हैं 30, 25 और यहाँ पे क्या है 25, दैट इज 15, 11 और ये क्या है 35, ये तो हमने डिलीट करके यहाँ ले गए हैं, ठीक है, तो भी 5 रहेगा नहीं, दिस इज दिस एंड यहाँ पे क्या है दैट 36, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। अब आपको सपोज करिए एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है, दैट इज सपोज करिए इंसर्ट एलिमेंट करना है 17। तो हाउ मेनी कंपैरिजंस आर रिक्वायर्ड, या हम कह रहे हैं आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है 29 कर दीजिए, इसको 29 इंसर्ट करना है। तो इनिशियली तो आप किस में इंसर्ट करेंगे, nth एलिमेंट, तो पहला ये है बाइनरी ट्री है तो इसमें यहाँ पे 29 यहाँ इंसर्ट होगा, फिर बी कॉल एडजस्ट प्रॉपर्टी मींस इंसर्ट एल्गोरिथम, तो इंसर्ट एल्गोरिथम में हम इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 29 यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, फिर इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, 15 यहाँ पहुंच जाएगा, दिस फॉलो द प्रॉपर्टी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ comparisons required that is equal to log of n. Next is the heap sort. Deletion takes order of log n times for deleting an element in worst case condition. Delete and readjust to form a heap. The complexity of heap sort, since inserting n element makes n insertion followed by n deletion from a heap. तो n insertion के लिए कितना टाइम लगेगा, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ईच एलिमेंट टेक्स log of n टाइम, तो टोटल टाइम्स रिक्वायर्ड इज log n फॉर इंसर्टिंग n एलिमेंट। डिलीशन
डिलीशन के लिए क्या, फॉर डिलीटिंग ए सिंगल एलिमेंट एंड रजिस्टरिंग इट log of n times required, तो which one is maximum? तो n log when n is maximum, this means the complexity of heap sort is also order of n log n. ठीक है, heap sort algorithm, simply heap sort an is an array which consisting n number of element, for I is equal to 1 to n do insert ai. तो हम सिंपली पहले क्या कर रहे हैं, इंसर्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इंसर्ट एल्गोरिथम कॉल कर रहे हैं, तो सारे को हमें इंसर्ट करना है एलिमेंट को इन प्रॉपर, आफ्टर वी फॉर्म अ हीप क्या करना है, फॉर आई इज इक्वल टू n माइनस 1 टू 1 स्टेप 1, फॉर ईच, फॉर आई इज इक्वल टू n से 1 तक चलना है, डिलीट ए आई यक्स. तो आपको देखिए ए आई इज इक्वल टू n टू 1 चलना है, डिलीट मैक्स क्या करना है, कर देना है. तो दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ it is easy to see that the leaf nodes are already heaps. We know that the leaf nodes are already heap. We begin the calling adjust for the parent of leaf node and then work our way up level by level until the root is reached. And this resultant algorithm is known as a heapify algorithm. This algorithm जो हम करते हैं कि हम इनिशियली क्या करेंगे, लीफ से चलेंगे, फिर उसके रूट को एडजस्ट करेंगे, फिर दो करेंगे, फिर जो है रूट को एडजस्ट करेंगे एंड अंटिल बी जो है फाइनल रूट तक पहुंचेंगे. एंड दिस एल्गोरिथम इज नोन एज ए heapify algorithms. And algorithm for creating a heap out of n element, this algorithm is heapify. An adjust element of array a to 1 to n from to form a heap. यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, for I is equal to n by 2 to 1 in step of minus 1 do adjust I a I n. तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक जैसे ही आपको एक बाइनरी ट्री मिलेगा और कंप्लीट बाइनरी ट्री, आपको ये एल्गोरिथम चलाना है heapify for I is equal to n by 2 to 1 step of minus 1, और हर में आपको जो है एडजस्ट फंक्शन कॉल करना है. ठीक है, एडजस्ट कॉल करना है. तो व्हाट हैपेंस हियर, ए आई एन में एडजस्ट फंक्शन कॉल करना है, ए आई एन पे एडजस्ट फंक्शन कॉल करना है. तो दिस इज द एग्जांपल, सपोज हियर दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. हमने एक ये जो लिस्ट लिया उससे हमने एक कंप्लीट बाइनरी, इज दिस फॉलो द property of heap sort, property of heap is not, this not follow the property of heap because some of the elements that are present in a child as a child element are greater value than the root. This means this is a complete binary tree. Yes, this is a complete binary tree. अब देखिए क्या करना है, n is equal to 7, तो i की वैल्यू कहाँ, एक ये जो लूप चल रहा है इसमें क्या है, i is equal to n by 2 1, तो n by 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 है, तो ये 3 हो गया, i is equal to 3. अब b कॉल द एडजस्ट a37. A37 में जब एडजस्ट कॉल कर रहे हैं तो यू ऑलरेडी सी द एल्गोरिथम ऑफ एडजस्ट. एडजस्ट में क्या करते हैं, सिंपली आइटम में क्या रख लेते हैं, ए आई. तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 3 है, तो आइटम में हम यहाँ पे 118 रख लिए. ठीक है, जे को 2i कर लेते हैं, तो जे को 2i क्या हो जाएगा, दैट इज 6 हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए जे में कौन सा 6th पोजीशन पे कौन सा है, ये है 151 है. अब यहाँ पे क्या है, ए आई में देखिए 118 हमने रख लिया. अब सिंपली हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, j इज लेस देन n है, j इज लेस देन n है, j की वैल्यू क्या है, सिंपली j इज इक्वल टू 2i दैट इज 6, और 6 इज लेस देन n क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 7 है. तो यस, कंडीशन इज ट्रू. तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या जो आइटम है, आइटम इज ग्रेटर, क्या है 151 है. ठीक है, फिर दोनों में क्या कंपेयर करेंगे कि ये और ये में से व्हिच वन इज लार्जर, दिस वन इज लार्जर, तो j यहीं पे रहेगा. अब देखेंगे कि आइटम इज ग्रेटर देन, नहीं है, आइटम इज नॉट ग्रेटर देन, तो ये सिंपली क्या करेंगे, aj by 2, तो 7 by 2 क्या यहाँ पे पहुंच जाएगा आपका, क्या यहाँ पे आपका पहुंच जाएगा 151. नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, सिंपली आफ्टर दैट क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो 14 आ जाएगा, जे की वैल्यू क्या होगी
14 होगी, 7 6 था, j इज इक्वल टू 6, तो j की वैल्यू हो जाएगी 12। 12 इज ग्रेटर देन, अब चेक करेंगे कि 12 इज ग्रेटर देन n लेस देन n, कंडीशन बिकम फॉल्स, तो सिंपली लूप टर्मिनेट हो जाएगा और j बाई 2 में क्या रख लेंगे, j बाई 2 में आइटम रख लेंगे। तो यहाँ पे j बाई 2 मीन्स 6, j के 6 में क्या रख लेंगे हम, आइटम, आइटम में क्या था 108, तो देखिए ये आपका बन गया 151 यहाँ आ गया, एंड देन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ i। i क्या नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा जब i इज इक्वल टू i माइनस 1 मीन्स 3 से 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टाइम पे क्या हुआ, 3 से 2 हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i दैट इज 4, j इज इक्वल टू 2i दैट इज इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, सिंपली अब देखिए यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 है, तो i इज इक्वल टू 2 मीन्स आइटम में क्या रख लेंगे 151 रखेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट है आपका j इज इक्वल टू क्या रख लेंगे 2, j इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 2 मीन्स i इज इक्वल टू ये हो गया 171 आ जाएगा, 2 में क्या है 170, तो आइटम इज इक्वल टू 171 हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, हम क्या रखेंगे 2i, तो j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो ये 4 हो जाएगा, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो विच वन इज लार्जर, दिस वन इज, तो j की वैल्यू 4 ही रहेगी। अब क्या करेंगे कि आइटम को चेक करेंगे, आइटम इज ग्रेटर देन दिस, यस आइटम इज ग्रेटर देन दिस आइटम, आइटम 171 है तो दिस, तो मीन्स वो ब्रेक हो जाएगा, और सिंपली हम क्या करेंगे, ये लूप से हम फाइनली ब्रेक हो जाएंगे, और aj बाई 2 में, तो मीन्स यहाँ पे वही रहेगा सेम, aj बाई 2 इज इक्वल टू aj कर लेंगे, तो aj बाई 2 इज इक्वल टू aj दैट इज सॉरी aj बाई 2 इज इक्वल टू आइटम, आइटम ही रहेगा यहाँ पे 171। नेक्स्ट i की वैल्यू 1 करेंगे, i की वैल्यू 1 हो जाएगा तो आइटम में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और थर्ड टाइम पे 100 हो जाएगा, j की वैल्यू क्या होगी 171 होगी, फिर इन दोनों का कंपैरिजन होगा तो j की वैल्यू 2 ही रहेगी। नेक्स्ट क्या होगा, j की वैल्यू 2 होगी, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट केस में जाएंगे यहाँ पे, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा j इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम चेक करेंगे, आइटम इज ग्रेटर देन aj, कंडीशन बिकम फॉल्स, आइटम इज नॉट ग्रेटर, आइटम में 100 है, 100 इज नॉट ग्रेटर देन 171, तो दिस मींस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तो aj बाई 2, aj बाई 2 इज इक्वल टू क्या रख लेंगे aj रख लेंगे, तो aj बाई 2 यहाँ पे क्या है, aj बाई 2 इज क्या है 2 है तो 1 आ जाएगा, तो a1 इज इक्वल टू aj, तो यहाँ पे 171 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टू 4 आएगा, ये आएगा 191, ठीक है। फिर 191 से कंपेयर करेंगे, मैं एक एग्जांपल, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 171 हियर, let us discuss here 100 171 151 and next one is just 119 112 119 112 118 132 118, ठीक है। 2 स्टेप हम ऑलरेडी चल चुके हैं, लास्ट स्टेप में हमें चलना है व्हेन द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू 1, ठीक है। i इज इक्वल टू 1, तो दिस मींस आइटम इज इक्वल टू ai दैट इज इक्वल टू 100 रख लिया हमने, j इज इक्वल टू 2i करेंगे, ठीक है, j इज इक्वल टू 2i दैट इज इक्वल टू 2। अब हमें कंपेयर करना है व्हाइल j इज लेस आर इक्वल टू n, अब एडजस्ट फंक्शन हम कॉल रहे हैं व्हाइल j इज लेस आर इक्वल टू n, यस कंडीशन इज ट्रू। अब देखेंगे इफ j इज लेस देन n एंड aj इज लेस देन aj प्लस 1, तो हम क्या करेंगे दैट इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे j इज इक्वल टू j प्लस 1 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए j इज लेस देन n है, j की वैल्यू क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या है aj इज लेस देन aj प्लस 1, दिस इज फॉल्स, तो ये नहीं चलेगा, तो j की वैल्यू वही रहेगी। फाइनली क्या करेंगे, आइटम इज ग्रेटर देन aj, आइटम इज ग्रेटर देन aj है, आइटम क्या है, आइटम 100 है, नहीं है, तो ये ब्रेक नहीं, ये होता तो ब्रेक हो जाता, कंटिन्यू चलेंगे, aj बाई 2 इज इक्वल टू aj बाई 2 मीन्स j की वैल्यू क्या है 2 बाई 2, तो ये 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 171, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 171। अगेन j इज इक्वल टू क्या करेंगे, j इज इक्वल टू 2j दैट इज इक्वल टू 2 2
4 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से जाएंगे, 4 इज लेस देन n, कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे भी 4 इज लेस देन n है, aj इज लेस देन aj प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए j इज इक्वल टू जब 4 हो गया तो 4 और 5, तो यहाँ पे aj नहीं है, फॉल्स है, j इज इक्वल टू j प्लस 1 नहीं होगा। नेक्स्ट जाएंगे, आइटम इज ग्रेटर देन aj, आइटम क्या है, aj में क्या है, aj में 119 पड़ा हुआ है, आइटम में 100 है, तो 100 इज ग्रेटर, नो, कंडीशन इज फॉल्स, तो हम क्या करेंगे aj बाई 2, तो नेक्स्ट स्टेप में भी करेंगे aj बाई 2 इज इक्वल टू aj। अब aj बाई 2 क्या है, 4 बाई 2, तो ये 2 पे क्या आ जाएगा यहाँ पे aj में क्या है 119, तो यहाँ 119 आ जाएगा। देन बी, अब यहाँ पे j इज इक्वल टू 2j करेंगे, तो j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2j मीन्स 8 हो जाएगा। हियर नंबर ऑफ नोट्स आर 7 ओनली, दिस मीन्स दिस कंडीशन बिकम फॉल्स, तो लास्ट में क्या जाएंगे, व्हेन दिस लूप इज टर्मिनेटेड देन क्या करेंगे, aj बाई 2 इज इक्वल टू आइटम, तो j क्या है यहाँ पे 4, 8 हो गया था, तो 4 हो जाएगा j बाई 2, 4 में आइटम, तो यहाँ क्या रख लेंगे फाइनली आइटम 100। तो आफ्टर दैट क्या ये ट्री बन जाएगी हिपिफाई, दिस इज 100 करें 171 यहाँ हो जाएगा, देन 119 हो जाएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, 132, और इधर क्या हो जाएगा, दिस इज 100, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो दिस इज अ means this is a heap property, we make a heap by using a complete binary tree। यहाँ पे complete binary tree था, ठीक है, elements are arranged into complete binary tree, then we form a heap। तो total number of maximum number of comparisons I is equal to n by 2 से 1 तक चलते हैं, तो in terms of n maximum n number of comparisons are required to form a tree। Okay, next one is the what is algorithm heap sort by using a heapify process। अभी जो एल्गोरिथम था वो आपने क्या एडजस्ट और डिलीट का यूज किया, यहाँ पे आप heapify का यूज करेंगे। तो सिंपली heap sort a n means a1n, this is a matrix or this is a array that contains n number of element to be sorted। heap sort rearrange them in place into non decreasing order। heapify हम कॉल कर रहे हैं, देखिए heapify function is already there, heapify function is already defined here, तो we call heapify, and after heapify पहले हम क्या कर रहे हैं, simply heapify कॉल कर रहे हैं, then for I is equal to n to step of -1, यहाँ पे देखिए t में हमने t is taken as a temporary variable, t is equal to ai कर दिए, ठीक है, ai is equal to a1 कर लेंगे, ai में क्या रख देंगे, a के n में हमने या i की वैल्यू n है, तो a की n में हमने a1 रख दिया मैक्सिमम एलिमेंट, और a1 इज इक्वल टू हमने t कर दिया। ये टेम्परेरी वेरिएबल जो i था nth पोजीशन पे, वो हमने किस में रख दिया, a1 इज इक्वल टू टेम्परेरी वेरिएबल कर देंगे ai, तो दिस इज इक्वल टू एंड देन कॉल दी एडजस्ट ai a1 i माइनस, देन अगेन कॉल द एडजस्ट फंक्शन। तो व्हाट इज द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये n टाइम्स चल रहा है लूप, n टाइम्स चल रहा है और ईच एडजस्ट को n log n टाइम लग रहा है, तो दिस मींस दिस हीप सॉर्ट आल्सो रिक्वायर्स ऑर्डर ऑफ n log n कंपैरिजंस टू हिपिफाई देम। ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल अबाउट अ हीप सॉर्ट, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर द मीनिंग ऑफ फिबोनाची हीप, बाइनोमियल हीप एंड बाइनोमियल ट्री। Thank you, sir. Any confusion, then please ask. Thank you, sir. Okay. Turn on your video for attendance. Okay, thank you. You can leave now. Sir. Sir. Again, sir.